Good afternoon, everyone. Today we are gathered to celebrate a historical day by witnessing the procedure of legislature. Before moving towards the mock parliament, I would like to remember you will on this day the Constituent of Assembly of India adopted Constitution of India, which later came into act on 26 January 1950. Constitution. What is Constitution, Dipanshu? Constitution is nothing in simple terms. We can call it a rule book. For example, our school have some certain rules and regulations. If we compile those in a book, that book will be called as Constitution of a school. For this we need three entities. First, a body that make those rules and regulations. Second, an entity which implement those rules and regulations. Third, an entity which check whether those rules and regulations are appropriate or not. Exactly like this, our constitution came into an act. Like Dipanshu mentioned earlier, we have three pillars of the constitution. First, legislature. Second, executive. And third, judiciary. The legislature is the law-making branch of the government. विधायी शाखा सरकार का वह अंग है जो कानून व्यवस्था बनाती है. The executive implement these laws and enforces them on the states. कार्यपालिका इन कानूनों और उन्हें राज्यों पर लागू करता है. The judiciary act as a watchdog that implements this law. न्यायपालिका एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है जो कानून की व्यवस्था करती है. The parliament is also known as the temple of democracy. Democracy? What is democracy? Democracy is a process in which people select their representative through elections or directly. Democracy provides people with equal rights on the basis of their caste, religion, and sex. Just like Abraham Lincoln said, for the people, by the people, to the people. Came into effect on 26 January 1950. Provides for a bicameral parliament consisting of a president and two houses. The Rajya Sabha or the Council of States or Lok Sabha, the House of People. The Rajya Sabha is known as the upper house and the Lok Sabha is known as the lower house. How many seats are there in Rajya Sabha and Lok Sabha? The maximum seat in Rajya Sabha are 250 and the maximum seat in Lok Sabha are 543. Do you know the preamble, also known as the soul of constitution? No. Let me tell you. I would request every member to stand in their respective places. To me. We, the people of India, having solemnly resolved, the Constitute India, into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, and political equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. Now you all may please take your seats. Without any further ado, I would like to start the mock parliament. In our left hand, we have the opposition, while on our right hand, we have the ruling party. Without any further ado, let us proceed the legislature assembly. माननीय सभासद, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, take your seat. I would like to invite newly elected member to come and take oath.
आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी भाषा में। मैं दीपिका तेलम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। All the members present here in this parliament, let remain silent for 2 minutes to pay tribute to our Titan man, Mr. Ratan Tata. Please be seated. स्वर्गीय रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह सदन उनके अद्वितीय योगदान को नमन करता है। उनका जीवन देश के विकास और सेवा का प्रतीक था। उनकी विरासत सदा हमें प्रेरणा देते रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। स्वर्गीय रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि। उनका योगदान और सेवा देश के लिए अमूल्य है। उनकी विरासत सदा प्रेरणा देती रहेगी। वे हमारे भारत के एक असली अमूल्य रत्न रहेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, मैं इस सत्र को शुरू करने के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जहाँ हम जनहित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। टुडे एज वी गैदर इन दिस एस्टीम्ड हाउस, लेट अस रिमेंबर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इस सत्र का एजेंडा कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करता है जिनमें आर्थिक नीतियाँ, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा शामिल है। हमें इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। I urge all members to maintain decorum and engage in respectful dialogue. हम सभी के विचार अलग हो सकते हैं लेकिन हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि इस सदन में मौजूद सभी सदस्यों के योगदान को ध्यान में रखते हुए हमें उनके मेहनत और समर्पण को सराहना चाहिए। आपके प्रयास देश की प्रगति में महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ वे अपने न्यूली इलेक्टेड मेंबर से इंट्रोड्यूस कराएं। हमारे नए शिक्षा मंत्री स्नेहा मिंज जी हमारे देश को नई दिशा और गति देंगे। मैं इनका यहाँ स्वागत करती हूँ और इनके सफल कार्यकाल की कामना करती हूँ। Now I invite the leaders of the respective parties to share their views on today's agenda. धन्यवाद महोदया। आज मैं इस सदन में गर्व के साथ यह कह सकती हूँ कि हमारा देश तेज़ी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। आयुष्मान भारत ने करोड़ों लोगों को, जी हाँ, करोड़ों लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम एक मजबूत और स्वावलंबी अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं। शिक्षा में बदलाव लाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर बच्चे को उज्जवल भविष्य का अवसर दिया जा रहा है। हमारी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाह हमारे विकास की ऋण है। मेरी दृष्टि यह है कि भारत केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक स्थायी और समृद्ध राष्ट्र बने। हर नागरिक को समान अवसर मिले, गांव और शहर दोनों में समान रूप से विकास हो। हम सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर मिलकर कदम बढ़ाना होगा। आइए सभी मिलकर इस सपने को साकार करते हैं। Question number 101, Miss Priya.
माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे अनुमति है? अनुमति दी जाती है। धन्यवाद महोदया। 14 जून 2022 को सरकार ने एक नई स्कीम लागू की थी, अग्निपथ स्कीम। उसको अनाउंस में कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि लोगों का युद्ध सड़कों पर आ गया प्रोटेस्ट के लिए। लोगों का कहना यह है कि यह नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए ही है और 4 साल के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और नौकरी से निकाल दिया जाता है और कहते हैं कि दूसरी नौकरी ढूंढ लो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों है? 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, कहाँ नौकरी ढूंढेंगे? इससे अच्छा तो यह स्कीम लागू ही ना होती। स्पीकर महोदया जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ, क्या मुझे अनुमति है? धन्यवाद महोदया। मैं अपने सभी साथी सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को समझती हूँ। हालांकि इस योजना में प्रशिक्षण और एक ठोस विकास नीति शामिल है, लेकिन सरकार इस योजना के बाद नौकरी और आगे की उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों के पास एक सफल करियर का मार्ग हो सके। अग्निवीर योजना के बाद तो हमारे पास भविष्य में आर्मी से प्रकाशित युवाओं की फौज तैयार की जाएगी ताकि जब भी यह देश को जरूरत पड़े तो नौजवान युवाएं अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहेगी। तब हम गर्व से कह सकते हैं, धक 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 धड़केगा ये अग्नि का अंगारा है, धक 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 धड़केगा ये अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 102 मिस्टर के हर्षित। महोदय जी, कल मेरे वाईफाई का प्लान खत्म हो गया तो मैं प्लान्स के प्राइसेस को देख के मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे। क्या मुझे इसकी अनुमति है? अनुमति दी जाती है। BSNL हमारे देश का बैकबोन है, स्पेशली रूरल एंड रिमोट एरियाज में। प्राइवेट कंपनीज अपना ज़्यादातर फोकस अर्बन मार्केट्स पर रखते हैं, लेकिन BSNL इंश्योर करता है कि दूर दराज के पिछड़े इलाकों में भी कम दाम पर टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचे। BSNL एक पब्लिक सर्विस एंटिटी है जो अपने प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर गवर्नमेंट BSNL को फाइनेंशियल सपोर्ट दे तो BSNL फिर से इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकता है। अगर आज गवर्नमेंट ने BSNL को सपोर्ट किया होता तो आज BSNL आगे होता और मोस्ट ऑफ द पीपल BSNL को यूज़ करते। ऑनरेबल स्पीकर, मैं महोदय की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इंडिया में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तब हमारी ही सरकार ने इंटरनेट की सुविधा प्रदान करवाई थी और अभी तक सुविधा प्रदान करवा रही है। एंड BSNL इज लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी एंड स्लो एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। प्राइवेट कंपनीज जैसे जियो, एयरटेल ने बहुत तेज़ी से टेलीकॉम मार्केट में बदलाव लाया है, इसलिए ही लोगों के बीच लोकप्रिय बना है। पर हमारा पूरा ध्यान BSNL की तरफ ही है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू पुट लाइट ऑन द फैक्ट दैट द प्राइजेस ऑफ डेटा प्लान्स फॉर 5G इन इंडिया आर द चीपेस्ट एज कम्पेयर टू अदर टॉप कंट्रीज। महोदय जी, हमारे देश के एक स्वयं BSNL नेटवर्क होने के बावजूद सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को इतना महत्व दिया, ना कि खुद के BSNL नेटवर्क को। अगर आप लोगों ने जितना महत्व प्राइवेट कंपनीज को दिया उतना ही महत्व BSNL को दिया होता तो आज BSNL आगे होता। Because they introduce affordable data plans and 5G services at a massive scale, जबकि BSNL अभी तक 5G लॉन्च करने में स्ट्रगल कर रहा है। प्राइवेट कंपनीज ने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन से मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज किया है, जबकि BSNL ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है। पर इस पे काम किया जा रहा है और आप देखिएगा 2025 तक BSNL 5G आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 मिस तुषारिका। Honorable Speaker, with your permission, I would like to ask some question to the Minister of Water and Mineral Resources. Permission granted. Thank you. मैं स्पीकर महोदय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाके दंतेवाड़ा, बीजापुर, किरंदुल एवं गंगालूर जैसे क्षेत्रों में आयरन ओर का भंडार फैला हुआ है। आयरन ओर की अधिकता होने के कारण वहाँ के पानी में भारी मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है जो कि पीने योग्य नहीं है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं महोदया। इसके कारण उन्हें किडनी फेलियर और किडनी से संबंधित तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके लिए लाखों का खर्चा हो जाता है महोदया। मेरा खनिज एवं जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि वे इन इलाकों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करें। इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। महोदया, मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी जब से इस सत्ता में आई है तब से लगातार जल, जंगल, ज़मीन जैसे गंभीर मुद्दों पर अति संवेदनशील है। उस मुद्दे पर भी हमारी सरकार तत्परता से निराकरण किया करेगी। साथ ही जल का TDS मॉनिटर किया जा रहा है। PHE विभाग से इसकी पूरी जानकारी लेकर जहां पीने योग्य पानी नहीं है वहां पर शुद्ध पानी टैंकर के द्वारा पहुंचाया जाएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भविष्य में ऐसी समस्या निर्मित ना हो सके, इसीलिए कलेक्टर महोदय द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग कराने का निर्देश दिया जाए। जल संसाधन योजना के तहत हर घर नल, हर घर जल पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 104, मिस श्रद्धा। मैं अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से हमारे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। हमारे ज़िले में चर्चित बहुत से वाटरफॉल है, जैसे नंबी, गलगम, लकापल्ली है। हमारे इन इलाकों के लोगों के नज़र से बहुत दूर है। यहाँ के सौंदर्यकरण में ध्यान दें ताकि ये देश भर में पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाए। मैं अध्यक्ष महोदया जी के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा। हमारी नज़र पहले से ही उस पर है, जैसे कि हमारी सरकार जल, जंगल, ज़मीन के कार्यों पर तत्पर रहती है, वैसे ही यहाँ के दिक्कतों को दूर किया जाएगा। सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा और को दुनिया भर में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, मिस निवेदिता। Honorable Speaker Ma'am, with your permission, I would like to ask some question to the respected Home Minister Sir. Thank you. मैं इन रिफॉर्म्स का विरोध करती हूँ। While it's true that our legal system needs changes, DNS और BNSS के कई प्रोविजन प्रॉब्लमेटिक है। This new codes might lead to over-centralization of power, especially in the hands of the police and government authorities. हम ऐसा सिस्टम नहीं चाहते जिसमें सिटीजन की पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो। Honorable Speaker, may I? Yes, you may. I stand strong support of both भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की सख्त ज़रूरत है। द करेंट लॉस IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट आर एक्चुअली कॉलोनियल इन नेचर, और ये 19th सेंचुरी में बनाए गए थे, जो अभी के समय में वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। BNS और BNSS जैसे रिफॉर्म से कानून ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होगा। जस्टिस सिस्टम में डिले को कम करने के लिए प्रोविजंस है और पॉलिसिंग को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। इससे हमारे सिटीजन्स को स्पीडी जस्टिस मिलने में सहायता हो रही है। सबसे पहले क्रिमिनल IPC और CRPC का मेन फोकस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर था, पर अब BNS का नेशनल सिक्योरिटी पर और BNSS का रोल टू टैकल इश्यूज लाइक टेररिज्म। पूरा भूल। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस? ओके। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक सरकारी और सरकारी स्कूलों में हर दिन मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए, किंतु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है। भूख बच्चों में सीखने पढ़ने की लालसा ही पैदा नहीं होने देती, बल्कि भूख का प्रभाव बच्चों की क्षमता पर पड़ता है। और तो और बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर जैसे जिलों में पोटा केबिन जैसी सुविधाएं तो उपलब्ध है, लेकिन वहाँ भी भोजन का वही हाल है। महोदय, क्या कहना आपकी सरकार का? बच्चों के पेट भरने से ज़्यादा खुद का पेट भरना देखा जाता है। महोदय, ऐसा क्यों होता है? महोदय जी, मध्याह्न भोजन योजना संचालनकर्ता समूह के विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कूपन से किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को MDM की व्यवस्था आधार है, यह जारी रहेगी और पोटा केबिन में बच्चों के साथ साथ उनके खाने का भी ध्यान रखा जा रहा है। यह हमारी निरंतर निरीक्षण जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 106, मिस प्रियंका। माननीय स्पीकर महोदय जी के माध्यम से मैं मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे अनुमति है? धन्यवाद महोदय। महोदय, आप तो जानते ही होंगे कि दिन ब दिन रेप केस बढ़ते ही जा रहा है और कोलकाता रेप केस से सभी अवगत है। क्या इससे पहले निर्भया रेप केस और मणिपुर रेप केस और अब कोलकाता रेप केस, इतना कुछ सब होने के बाद भी इन्हें और इंतजार है महोदय? आखिर कब जागेगी ये सरकार?
Honorable Speaker, may I have the permission to give answer? Permission granted. We have enforced strict laws against harassment and violence in workplaces. We will run campaign to raise awareness about women's rights and safety. We had arranged women's safety such as increase the number of CCTV cameras and women policy in public places and in public transport. महोदय, शहरी क्षेत्रों में तो अपराधी बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या? ना वहाँ मीडिया जाती है, ना वो पुलिस जाती है, ना कार्रवाई करते हैं। मेरा मानना यह है कि ऐसे अपराधियों के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को, कि ऐसा करने के लिए लोग सोचे ही ना। जवाब दीजिए हमें, इसका उत्तर दीजिए, हमें जवाब चाहिए आपसे, बताइए हमें। This session will resume after 2 minutes. माननीय सभासद, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, अब आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। प्लीज टेक योर सीट। महोदया, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपकी चिंता समझती हूँ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारे सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। जरा हमें भी बताइए, आपके सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? बताइए हमें भी, इसका जवाब दीजिए, इसका बता सकें। सिर्फ महिलाओं के लिए शी टीम पुलिस बल, जिसमें सिर्फ महिला कर्मचारी नियुक्त हैं, और ये टीम सिर्फ महिला कर्मचारी और महिला बाल विकास मंत्री के मार्गदर्शन पर कार्य करेगी। और इन अपराधों के लिए महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर है, जिसमें महिला कॉल या SMS करती हैं तो उनका FIR दर्ज कर दिया जाता है, जिससे उन्हें पुलिस थाने जाने की आवश्यकता नहीं होती। और इस नंबर पर कॉल करने पर महिला पुलिस ही आपकी कॉल उठाती है, ताकि वे बेझिझक अपनी समस्या अच्छे से बता सके। तो महोदया, ये थी हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए निम्न कदम, ताकि पुलिस की उपस्थिति और कार्यवाही मजबूत हो सके। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए नए पुलिस थाने खोलने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपराधियों पर नजर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महोदया, आखिर कब तक एक और कोलकाता केस और निर्भया केस हो जाएंगे? तब तक महोदया जी, हमने इसके लिए भी मीडिया तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, महोदया जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि हर कोने की आवाज सुनी जा सके। महोदया, ये तो बात हो गई शहरी क्षेत्रों की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्लेटफॉर्म का विस्तार कैसे करेंगी? वहाँ तो ना नेटवर्क होता है और ना ही मोबाइल फोन। महोदया जी, हमारे पास इसका भी समाधान है। और रही बात ग्रामीण क्षेत्रों की, तो हमारे सरकार के द्वारा बनाई गई शी टीम वहां जाकर वहां का दौरा करेगी, वहां के निवासियों की समस्या सुनेगी और प्रशिक्षण करेगी। धन्यवाद। Any supplementary questions? और क्वेश्चन 7 मिस्टर वैभव। एजुकेशन लेवल गिरता हुआ इस देश में, जहां युवा पढ़ाई से ज़्यादा सहूलियत से हैं, जैसे कि आप बिहार की घटना देख लीजिए, जहां युवा 2 लाख की IPS वर्दी पहनकर घूमना पसंद करते हैं महोदया, लेकिन स्कूल जाना पसंद नहीं करते। महोदया, ये हालात है हमारी देश की शिक्षा नीति की, जहां स्कूल जाए तो स्कूल में शिक्षक नहीं, और शिक्षक भर्ती के लिए बैठे लाखों लोग इन्हें दिखाई नहीं देते, और जो शिक्षक हैं वो भी संविधा में निरंतर इतने सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं महोदया, लेकिन इन्हें नियमित करने की कोई योजना दिखाई नहीं दे रही। NEP 2020 में कोई सुधार नहीं ला पा रहा, और ना बच्चों को स्कूल तक पहुंचा पा रहा है। पता नहीं कब जागेगी ये सोई हुई सरकार। ऑनरेबल स्पीकर, मे आई? एजुकेशन सिस्टम में NEP 2020 लागू किया गया है, ताकि शिक्षा में क्वालिटी को अधिक से अधिक इंटरनल एरियाज़ के बच्चों तक पहुंचाया जा सके। और ऑपोजिशन को मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो रेगुलरिटी ऑफ जॉब्स के टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, और इस पर हम जल्द ही सकारात्मक पहल निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर 108 मिस रोशनी। माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे अनुमति है? अनुमति दी जाती है। धन्यवाद महोदय जी। जो हसदेव अरण्य में इतने समय से पेड़ों का कटाई कार्य चल रहा है, वहाँ के आदिवासी हसदेव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका मूल आय का स्रोत जंगल ही है। लोग इसे रोकने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और शासन का अलग ही अत्याचार है। समस्या सिर्फ आदिवासियों का ही नहीं है, बल्कि इस समस्या से सारा राज्य जूझेगा, क्योंकि जंगल है तो पानी है, जंगल है तो हम। कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट कंपनियों में सरकार काम करते करते हवा के भी पैसे लेने लगे, वो भी महोदया जीएसटी के साथ। यहाँ सरकार पर्यावरण संरक्षण को भूल गया है। महोदया, निवेदन है कि सरकार से को बचाने में कोई तो ठोस कदम उठाया जाए। माननीय सदस्य, हसदेव अरण्य वन और वहाँ के सभी आदिवासी समुदायों की चिंताओं को हम गंभीरता से लेते हैं। पहला, पर्यावरण सुरक्षा। खनन के लिए कड़े मूल्यांकन होंगे और संवेदनशील क्षेत्रों को नो गो जोन घोषित किया जाएगा। दूसरा, वनीकरण। किसी भी कटाई के बदले आसपास के क्षेत्रों को वनीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा, आदिवासी अधिकार। आदिवासियों के लिए वैकल्पिक कौशल विकास रोजगार कार्यक्रम शुरू होंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 109 मिस्टर सर्वजीत। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मुझे अनुमति है? अनुमति दी जाती है। शुक्रिया। आज छत्तीसगढ़ के सड़कों की स्थिति से हर कोई वाकिफ है। जैसे केसकाल घाटी की स्थिति, वहां तो हफ्ते के 7 दिन जाम लगा रहता है। महोदया, रातें बीत जाती हैं पर वहां की भीड़ खत्म ही नहीं होती। लोगों का यह हाल हो गया है और समय की बर्बादी अलग। लोगों के समय का भारी नुकसान है ये महोदया। यह तो साफ साफ सरकार की गलती है। यह हाल है हमारे देश के नेशनल हाईवे का, और ग्रामीण क्षेत्र का क्या ही कहना। हमारे ग्रामीण इलाकों के सड़क निर्माण का बोर्ड तो लगा दिया जाता है डामरीकरण के लागत के साथ, पर वहां जाके देखे तो हुआ रहता है मुर्मीकरण। महोदया, यह हाल हो गया है हमारे ग्रामीण इलाकों का। इतना सब होने के बाद भी ठेकेदारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या यह सरकार की गलती नहीं जो लाखों जान इन खराब सड़कों से जाती है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि इन रोडों को ठीक करवाया जाए? धन्यवाद। माननीय सदस्य, केसकाल घाट के सड़कों की स्थिति को लेकर आपका चिंता करना जाहिर है और मैं इसे गंभीरता से लेती हूँ। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और बार बार सड़कों का खराब होना हमें भी स्वीकार्य नहीं है। पहले किए गए कामों की गुणवत्ता से जांच करवाई जाएगी और जो ठेकेदार जनता की सुविधाओं को अनदेखी कर अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और महोदय, यह राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण कार्यकाल में बाधाएं आ रही थी, लेकिन अब यह कार्यकाल डायवर्शन के साथ चालू कर दिया गया है, अतः शीघ्र ही डायवर्शन के साथ पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस? नंबर 110 मिस प्रतिभा। माननीय महोदय, मैं खाद्य एवं स्वास्थ्य मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे अनुमति है? मैं हमारे खाद्य एवं स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि बाकी देशों के मुताबिक हमारे देश में पैकेज फूड की क्वालिटी आखिर इतनी खराब क्यों है? फूड क्वालिटी को मॉनिटर करने वाली FSSAI फूड क्वालिटी से कर लूँ, फूड क्वालिटी को मॉनिटर करने वाली FSSAI ने भी कुछ कदम नहीं उठाए हैं। पाम ऑयल, रिफाइंड फ्लोर और शुगर, इन तीनों के अलावा हमारे देश में मिलने वाले फूड क्वालिटी को माननीय महोदय जी, मैं खाद्य एवं स्वास्थ्य मंत्री को कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे अनुमति है? मैं हमारे खाद्य एवं स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि बाकी देशों के मुताबिक हमारे देश में पैकेज फूड की क्वालिटी आखिर इतनी खराब क्यों है? फूड क्वालिटी को मॉनिटर करने वाली FSSAI ने भी कुछ कदम नहीं उठाए हैं। पाम ऑयल, रिफाइंड फ्लोर और शुगर, इन तीनों के अलावा हमारे देश में मिलने वाले पैकेज फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करने वाली कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा क्यों? ऑनरेबल स्पीकर, may I?
अयो मैडम, हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और हमारी सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों से इस बात की चर्चा कर रही है। इस समस्या का हल हम जल्दी लाएंगे और FSAI को न्यू सेट ऑफ गाइडलाइन दे दी गई है जिसमें पाम ऑयल और मैदा का कम से कम यूज़ करा जाएगा। Any supplementary questions or answers? संसद में लंबित मुद्दों पर चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है हम सब मिलकर इन पर गंभीरता से विचार करेंगे। अब इस सदन की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सदन की अगली बैठक 25 मार्च 2025 को 11 बजे से होगी। धन्यवाद। As we have seen legislature, let us now move on to the executive branch. The executive branch consists of President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers and various civil servants who ensures that laws are being enforced and implemented successfully. Let me also remind you all about the fundamental rights, which are the right to education, the right to freedom, the right against exploitation, the right to freedom of religion. Now I would like to invite my friend Devanshu to come over and tell us how the judicial branch works. Judiciary is the third and the most important pillar of not just constitution but our country. The main purpose of judiciary is to interpret the laws whenever required. Judiciary takes place the final call in whatever the laws or amended acts legislative is presenting. If legislative passes any laws which is violating fundamental rights of anybody or if it is violating the basic nature of our constitution, so judiciary has the power to abolish that. In short, judiciary controls the government in a condition where the existing government has adequate number of members of MLAs and MPs, and this came into effect with the landmark decision by Honorable Supreme Court on Keshavanda Bharati case in 1973 that has established the doctrine of basic nature of constitution. The doctrine states that the certain fundamental features of constitution cannot be amended by parliament like democracy, secularism and the rule of law, the independence of judiciary, and this define the power of parliament. Now I would like to invite Principal Sir to come on the stage and tell a few words on this historical day. Okay. Good evening, children. I am very happy watching this program. It felt very good the way you presented, the way the mock parliament session was held. It was absolutely what we have been watching in the Lok Sabha TV and all. And from my heart, I really thank the teachers who worked hard for this. Because of their hard work, all this we could see here. And it was wonderful. और आगे आप लोग ऐसे प्रोग्राम और करते रहें, इसके लिए शुभकामनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन डे की बहुत शुभकामनाएं सभी को। ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान हो। थैंक यू वेरी मच।